السلام علیکم، سچ نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ۔ اے خالق ارض و سما، تجھے واسطہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کا، ہمیں دنیا کے تمام مصائب و آلام سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، محمد اور آل محمد کے صدقے میں کشمیر اور فلسطین سمیت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت کر اور انہیں آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما، آمین۔ آغاز میں سب سے پہلے موسم کی بدلتی رتوں کی بات کرتے ہوئے شہر قائد سے آپ کو خبر دیں گے۔ کراچی میں مانسون کا چوتھا سپیل جاری ہے، آج تیز بارش کا امکان ہے۔ شہر کے بعض نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہے، جبکہ بارش برستے ہی شہر کے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ ترجمان کے الیکٹرک نے دعویٰ کیا ہے کہ شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی جاری ہے، بارشوں کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔ شہر قائد میں ایک بار پھر جھڑی کا آغاز ہو گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ بارش کے بعد حبس اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا۔ تیز بارش نے شہر کی سڑکوں اور گلیوں کو جل تھل کر دیا، جو تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ ابر رحمت برسنے پر شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، جن کا کہنا ہے کہ وہ بارش سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں، تاہم نکاسی آب کا نظام درست نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بوندیں پڑتے ہی شہر کے زیادہ تر علاقوں میں کے الیکٹرک کے فیڈر ٹرپ ہو گئے اور بجلی معطل ہو گئی، جس کے سبب گھروں میں معمولات زندگی شدید متاثر ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں جمعے اور ہفتے کو مزید تیز بارش ہوگی، جو اربن فلڈنگ کا سبب بن سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 2 دنوں کے دوران 100 سے 130 ملی میٹر بارش ہوگی۔ ادھر برساتی نالوں کی صفائی کا کام بھی جاری ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 3 بڑے نالوں گجر نالا، مواج گوٹ نالا اور کرنگی نالے کے درجنوں پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہیں۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے موسلادھار بارش کے پیش نظر نالوں کی صفائی کے کام میں تیزی کر دی گئی ہے، تاکہ شہر کو گزشتہ اتوار میں پیش آنے والی صورتحال سے بچایا جا سکے۔ کیمرامین سراج عباس کے ساتھ عبدالقدیر رانا، سچ ٹی وی، کراچی۔ کراچی میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد شہر کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، جبکہ بارش کی پہلی بوند پڑتے ہی شہر کا بیشتر حصہ بجلی سے محروم ہو گیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے عطا حسین عیسیٰ نگری پر موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ عطا، کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جی بالکل، کراچی میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی تیز ہواؤں کے ساتھ مسلسل بارش ہوئی تھی، جس کے بعد جو ہے شہر کا جو بلدیاتی ادارے ہیں جو ان کی کارکردگی کا پول کھل گیا تھا۔ شہر میں جگہ جگہ جو ہے سڑکیں جو ہے تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ کوئی گلی کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں پہ پانی نہ جمع ہو۔ اس وقت میں عیسیٰ نگری کے مقام پر موجود ہوں۔ اگر میرا کیمرہ مین اصغر آپ کو یہاں پہ دکھائے کہ مین سڑک ہے عیسیٰ نگری کی، اس پہ کس حد تک پانی جمع ہے، سڑکوں پہ لوگوں کی گاڑیاں خراب ہو گئی ہیں۔ جو موٹر سائیکل سوار ہیں ان کو بھی پریشانی کا سامنا ہے، گاڑی والوں کو بھی پریشانی کا سامنا ہے، کوئی فیملی کے ساتھ ہے، کوئی دفاتر جا رہے ہیں، ان کو بھی جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جبکہ خالی یہی سڑک نہیں بلکہ یونیورسٹی روڈ کی سڑک ہو گئی اور دیگر قیوم آباد اور کورنگی کراسنگ، ادھر بھی جو ہے سڑکیں جو ہے تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں کہ میں آج بھی جو ہے موسم کا حال بتانے والوں نے جو ہے مزید تیز بارشوں کی پیشگوئی کی ہے، جو کہ ہفتے سے لے کے اتوار تک جو ہے بارشوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ادھر کے الیکٹرک انتظامیہ کی، تو اتنی شدید گرمی کے بعد یہ موسم خوشگوار ہوا، لیکن کے الیکٹرک انتظامیہ سے جو ہے وہ عوام کی خوشی برداشت نہ ہوئی اور پہلی بوند پڑتے ہی جو ہے شہر کے بیشتر علاقے جو ہیں ان کی بجلی، بیشتر علاقوں کی بجلی جو ہے بند کر دی ہے۔ اب تقریباً 12 سے 14 گھنٹے ہو چکے ہیں، لیکن بیشتر علاقوں کی بجلی اب تک بحال نہیں ہو سکی ہے۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر شہری کے الیکٹرک کی ہیلپ لائن پہ کال کرتے ہیں تو ان کو وہاں پہ کال نہیں ملتی ہے۔ اگر اتفاقاً ان کی کال اٹھا بھی لی جاتی ہے تو ان کو صرف یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ فالٹ ہے آپ کے علاقے میں، فالٹ کو دور کریں۔ تو کے الیکٹرک انتظامیہ کی جو ہے وہ بے لگام ہوئی ہوئی ہے۔ 16 گھنٹے 15 گھنٹے ہو چکے ہیں، شہر کے مختلف علاقے ہیں وہاں پہ لائٹ ابھی تک بحال نہیں ہو سکی ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی عطا حسین اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔
کراچی میں بارش کے بعد سندھ کابینہ متحرک ہو گئی. صوبائی وزیر سعید غنی اور مشیر قانون مرتضی وہاب کا مختلف علاقوں کا دورہ. شہر میں بارش کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا اور نکاسی آب کی ہدایات جاری کی. چیئرمین ڈسٹرکٹ ایسٹ، MC، واٹر بورڈ اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے افسران بھی موجود تھے. 3 جولائی سے ہی شہر کے 38 بڑے نالوں کی صفائی شروع کر دی گئی تھی. سعید غنی کی جانب سے کہا گیا کہ تمام چوکنگ پوائنٹس کلیئر کر دیے گئے ہیں اور انگیز، سولجر بازار اور گارڈن میں نالے اوور فلو ہونے کے اسباب سامنے آ گئے ہیں. کراچی میں بارش کے بعد سندھ کابینہ متحرک ہو گئی. صوبائی وزیر سعید غنی اور مشیر قانون مرتضی وہاب نے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے بارش کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا اور نکاسی آب کی ہدایات بھی جاری کی. کراچی کے مختلف علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ برقرار ہے. کم و بیش شہر کا ہر علاقہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی زد میں ہے. کراچی میں شدید گرمی میں بھی کہ الیکٹرک والوں کو عوام پر ترس نہ آیا. شہر کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے. شہر کے وہ علاقے جہاں بدترین لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے ان میں لیاری، صدر، لائنزیریا، جمشید روڈ، لیاقتآباد، ملی اور کورنگی شامل ہیں، جبکہ اورنگی ٹاؤن، گلبہار اور اطراف کے علاقوں میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے. گرمی کے ستائے شہری کہتے ہیں کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن کر دی ہے. گھنٹہ لیٹ ہوتی ہے، 2 گھنٹہ نہیں ہوتی. ہاں بہت مشکل. ایک ٹائم بھی دے دے تو بھی سمجھ میں آئے کہ اس وقت جو نا بندہ اپنا کام سے فارغ ہو جائے. اب کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، جب دل میں آتا ہے تب بند کر کے چلے جاتے ہیں، جب دل میں آتا ہے تب بھیج دیتے ہیں. کل صبح کو 10 بجے کی گئی ہوئی ہے، رات کو 8 بجے آئی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سی لوڈ شیڈنگ ہے بھائی؟ شہریوں کا شکوہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے باوجود بھاری بھرکم بل بھی فراہم کیے جا رہے ہیں. لیاری میں تو مطلب کہیں 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے مطلب لوڈ شیڈنگ اتنی ہے کہ پوچھو نہیں. بیمار لوگ ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں. عام اب حالانکہ کووڈ-19 چل رہی ہے، اس میں بھی لاک ڈاؤن میں بھی سندھ حکومت کی طرف سے تو اعلان تھا بجلی کے بل معاف بھی کرا، لیکن ہمارے گورنر صاحب ہیں انہوں نے وہ بجلی کا جو دستخط تھا اس کو دستخط بھی نہیں کیا اور ہمارے لوگ بہت پریشان ہیں. حکومتی نمائندوں کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اب لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود شہر میں کئی گھنٹے بجلی بند رہتی ہے. صرف کراچی میں ہی بارش نہیں ہوئی، سندھ کے دیگر علاقے بھی شدید بارش کی لپیٹ میں ہیں. حیدرآباد میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. بارش پڑتے ہی ہیسکو کے فیڈر سٹرپ کرنے سے بجلی غائب ہو گئی. نواب شاہ میں بارش جم کر برسی. سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں بھی طوفانی ہواؤں کے بعد بارش جم کر برسی. شہر کے علاقوں لطیف آباد، قاسم آباد سمیت دیگر علاقوں میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور سڑکیں پانی سے بھر گئی. بارش کی چند بوندیں پڑتے ہی جیسکو کا نظام بھی جواب دے گیا اور 45 فیڈر سٹرپ کرنے کے نتیجے میں شہر کی بجلی بھی غائب ہو گئی. نواب شاہ میں بھی موسلادھار بارش سے شہر اور مسافات کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. بارش پڑتے ہی نواب شاہ میونسپل کمیٹی کی جانب سے مونسون بارشوں کے پیش نظر کیے گئے اقدامات دھرے کے دھرے رہ گئے. بارش کے نتیجے میں شہر کے متعدد علاقوں میں ڈرینیج کا پانی جمع ہو گیا. سڑکیں بھی تالاب کا منظر پیش کرنے لگی جس سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کراچی میں نالوں کی صفائی جاری ہے. نالوں اور نکاسی کی جگہوں پر بوریاں اور پتھر نکالے جا رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ شہر میں منظم انداز میں نالوں کو بند کر دیا گیا ہے. اس سال سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ کام ہم خود ٹیم میں تشکیل دے کے اس کو سر انجام دیں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کراچی کے نالے ہیں اس کے اندر سے ایسی رکاوٹیں ہماری ٹیمز نے نکالی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ جو بہادر عملہ جو کہ نالوں کے اندر گیا، لائنوں کے اندر گیا، انہوں نے اندر سے بوریاں نکالی ہیں، پتھر نکالے ہیں، وائرز نکالے ہیں، گندگی نکالی ہے. یہ شو کرتا ہے کہ کس طریقے سے کراچی کے نظام کو خراب کرنے کے لیے یہ سازش رچائی جاتی تھی. ہم نے بھرپور طریقے سے کوشش کی ہے کہ لوگوں کی مشکلات میں کمی لا سکیں. کراچی کے بڑے نالوں کی صفائی کا کام 80% مکمل ہو چکا. 20,000 ٹن سے زائد کچرا نکال کر ڈمپنگ سائٹ پر پہنچا دیا. FWO نے 3 بڑے نالوں میں 35 چوک پوائنٹس کھول دیے جن سے 20,000 ٹن سے زائد کچرا نکالا جا چکا ہے.
कराची में मानसून बारिशों के पेश नजर FWO की जानिब से बरसाती नालों की सफाई का काम तेजी से जारी है। FWO हैवी मशीनरी के साथ नालों की सफाई मुकम्मल करने की कोशिश में मसरूफ है। कराची के बड़े नालों की 80% सफाई हो चुकी है। NDMA हुकाम का कहना है कि कराची के 3 बड़े नालों में 42 मकामात पर चोक पॉइंट्स थे, जिनमें से बेशतर को क्लियर किया गया। गुजर नाले को 80%, कुरंगी 85 और मवाज गोट को 75% तक साफ किया जा चुका है। तर्जमान NDMA के मुताबिक गुज़श्ता रोज तकरीबन 10,000 टन कचरा नालों से निकाला गया। अब तक 3 बड़े नालों से 20,000 टन से जायद कचरा निकाला जा चुका है। कराची में नालों की सफाई पर शहरियों ने भी इत्मीनान का इजहार किया, ताहम बाज नालों के अतराफ तजावुजात की वजह से सफाई मुहिम में मुश्किलात हैं। तर्जमान के मुताबिक FWO को 8 अगस्त तक तीनों नालों की मुकम्मल सफाई का टास्क दिया गया है और वजीर आजम को रोजाना की बुनियाद पर काम की पेशरफ्त से आगाह किया जा रहा है। दूसरी जानिब इंतजामिया के मुताबिक अब भी कई मकामात ऐसे हैं जहां पर नालों की सफाई बाजार में रिहायशी इलाकों से गुजरने वाला नाला कचरे से भरा हुआ है। गलियां तंग होने के बायस FWO की भारी मशीनरी की वहां तक रसाई मुमकिन नहीं। और अब कोरोना वायरस का जिक्र करें तो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 782 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सज्जाद काज़मी से। सज्जाद, कोरोना की क्या सूरत हाल है? कमी आ रही है केसेस में? जी बिल्कुल, कोरोना के जो टेस्टों में इजाफा देखने में आ रहा है, उसके साथ साथ जो केसेस उनमें कमी देखने में आ रही है। 24 घंटे में 782 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि मुल्क में मजमूई जो तादाद है मरीजों की वो 2,82,645 तक जा पहुंची है। एक्टिव केसेस वाले से देखा जाए तो 2,000 जो मरीज है मजीद से जाब होने के बाद अब जो एक्टिव केसेस की तादाद है वो 18,494 तक रह चुकी है। मुल्क में से जाब मरीजों की मजमूई तादाद है वो 2,58,099 हो चुकी है और 24 घंटे में 17 जो मजीद अमवात के बाद जो अब मजमूई जो तादाद है अमवात की वो 6,052 तक जा पहुंची है। सिंध में सबसे ज्यादा जो है कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं, जहाँ अब तक जो मजमूई जो तादाद है सिंध में वो 1,22,769 तक जा पहुंची है। और दूसरे नंबर पर पंजाब का है, जहाँ से 94,040 केसेज अब तक कंफर्म हो चुके हैं। KPK से भी मुतासरा मरीजों की जो तादाद है वो 34,432 और बलोचिस्तान में जो तादाद है वो 11,821 तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में इस हवाले से अगर बात करें तो 15,182 केसेज अब तक कंफर्म हो चुके हैं। आजाद कश्मीर से भी 2,124 और गिलगित बल्तिस्तान से 2,287 केसेज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में अगर टेस्ट की बात करें जो कि हमेशा जो पिछले एक हफ्ते से गिर रहा था ग्राफ उसका, उसमें काफी बेहतरी देखने में आ रही है कि पिछले 24 घंटों में जो है 20,461 नए टेस्ट किए गए हैं कोरोना के तशखीसी। आज इसके बाद अब तक मजमूई जो तादाद है टेस्टों के हवाले से वो 20,89,333 तक जा पहुंची है। इस वक्त भी 163 मरीज जो है वेंटिलेटर पर मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है ज़ेर इलाज हैं। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। दीगर खबरों में आपको बताएं कि गुजरांवाला में लगे बरसों पुराने गंदगी के ढेर खत्म नहीं किए जा सके। शहरी कहते हैं इंतजामिया दावे तो बहुत करती है मगर काम नहीं। मजीद बता रहे हैं शहजाद रफी। जी शहजाद। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में सफाई हमेशा से एक सबसे बड़ा मसला रहा है। शहर के माथे पर लगा गंदगी का बदनुमा दाग जो है वो आज तक खत्म नहीं किया जा सका। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के वसाइल की बात करें तो भाई हाल ही में उन्होंने करोड़ों रुपए की मशीनरी खरीदी है, जिसमें 170 के करीब ट्रक और क्रेन खरीदी गई हैं, 200 के करीब कंटेनर खरीदे हैं, 300 के करीब छोटे कंटेनर खरीदे हैं। लेकिन शहर में अभी भी कई एक इलाकों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला के कॉलेज रोड के पास। यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं। ये कब से यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है और ये इसको क्यों नहीं उठाया जाता? ये साल से ये मसाइल हैं जी। ये इस्लामिया कॉलेज की दीवार है, कॉलेज में बच्चे नौजवान इस कौम का मुस्तकबिल ये पढ़ते हैं। ये बीमारियों के ढेर हैं जी। इधर गोबर है, इधर ओजड़ियाँ हैं, इधर आलाइशें पड़ी होती हैं साल से। कोई उठाने वाला नहीं है। इंतजामिया सोई हुई है, इंतजामिया की ये गफलत है। करोड़ों की मशीनरी हम सुनते हैं जी मिल गई है, फलां हो गया है, लेकिन ये इसी तरह है। यही हाल है, आपके सामने है। कितनी गंदगी, कितने जरासीम और कितनी बदबू इधर से आ रही है। इधर से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आपको देख के मैं खड़ा हो गया हूँ। ये आपकी नेकी है। ये आप ये अच्छा बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी है। उनका कहना है कि कई अरसा गुजर गया है, यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। इंतजामिया बहुत दावे करती है कि हमने करोड़ों रुपए की मशीनरी खरीद कर शहर से कचरे और गंदगी का खात्मा कर दिया है, लेकिन यहाँ पर कई सालों से जो पड़ा हुआ कचरा इंतजामिया की कारकर्दगी का पर बहुत बड़ा एक सवाल है। जी आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सखर में सच न्यूज की नेकी की टोकरी की सूरत में सफेद पोश तबके की मदद को बहुत सराहा जा रहा है। शहरियों का कहना है कि सच न्यूज की ये काविश बहुत से लोगों का भरम रखे हुए है।
سچ ٹی وی کی جانب سے یہ نیکی کی ٹوکری کا جو عمل ہے ایک بہترین عمل ہے جس سے جو سفید پوش ہے غریب طبقہ ہے اسے تمام تر بہت زیادہ اس سے فائدہ ہے۔ آپ ایک دیکھیں تندور پر جو ہے ایک بندہ جاتا ہے 10 روٹیاں لینے کے لیے، اگر وہ 10 کی جگہ 12 لے گا تو اس رکھی ہوئی ٹوکری میں 2 روٹیاں اس ٹوکری میں ڈال دے گا، اور وہ بندہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور جو 2 روٹیاں لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، وہ 2 روٹیاں وہاں سے فری میں بغیر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جو ہے وہ روٹی وہاں سے لے لے گا۔ اس طرح سے اس کو جو وہ ایک اس کے مطلب مالی مدد بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے پرچونوں کی دکانوں پر بھی کئی جگہ پر ہم نے دیکھا ہے کہ سچ ٹی وی کی نیکی کی ٹوکری رکھی ہوئی ہے، وہاں پر بھی جو راشن ہو یا نقد ہو یا امداد جس طرح بھی ہو وہ اس ٹوکری میں ڈالیں، اور لوگ ڈال رہے ہیں، اور یہ بہت ایک اچھا قابل تعریف عمل ہے۔ سچ نیوز نے جو نیکی کی ٹوکری کے حوالے سے ایک پروگرام شروع کیا ہے، اس میں سفید پوش لوگوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ اس میں ہم لوگ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اس میں ڈونیٹ بھی کریں، اور ایسے لوگ جو مانگ نہیں سکتے، قرآن پاک میں بھی یہ لکھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرو اور محسوس بھی نہ ہونے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ پڑے، تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ سکھر میں سچ ٹی وی کی طرف سے نیکی کی ٹوکری کا جو اہتمام کیا گیا ہے یہ بہت ہی اچھا کام ہے۔ ایک تو کورونا وائرس کی وجہ سے کام کاج سارے ٹھپ ہو گئے، بالکل کاروبار نہیں ہے، سفید پوش لوگ جو ہیں وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا نہیں سک رہے شرم کے مارے، تو یہ جو نیکی کی ٹوکری کا کام کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے، ہمیں بہت ہی پسند آیا، یہ سچ ٹی وی کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو ساری انسانیت ہے، سارے جو لوگ ہیں اگر وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 157 ہو گئی، زخمیوں کی تعداد 5000 تک پہنچ گئی، جبکہ متعدد افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ بیروت دھماکوں کی تحقیقات کے لیے حکومت نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے، جبکہ ذمہ داران کے تعین کے لیے کمیٹی کو 4 روز کا وقت دیا گیا ہے۔ دھماکے کی تحقیقات مکمل ہونے تک بیروت کی بندرگاہ کے متعلقہ حکام کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ لبنان کے مرکزی بینک نے بندرگاہ کے جنرل مینیجر اور ڈائریکٹر جنرل کسٹمز سمیت دیگر 5 افراد کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے ہیں۔ دوسری طرف دنیا بھر سے بیروت دھماکے کے متاثرین کے لیے امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ نے بیروت کے اسپتالوں کے لیے $90 لاکھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے 1 ستمبر سے اسکول کھولنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ برطانیہ میں کرونا کیسز کی تعداد 3,08,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ 46,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ امریکہ میں کرونا متاثرین 50 لاکھ اور بھارت میں 20 لاکھ سے تجاوز کر گئے۔ دنیا بھر میں 1,92,00,000 کرونا مریضوں سے 1,23,00,000 سے زیادہ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اور وفاقی حکومت نے 15 ستمبر سے اسکولز کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے بتایا کہ روڈ اور ریل ٹرانسپورٹ کو بھی 10 اگست سے کھول دیا جائے گا۔ سنیما ہالز، تھیٹرز، ریسٹوران اور شادی ہال بھی SOPs کے ساتھ 10 اگست کو کھولے جا سکتے ہیں۔ مزارات بھی 10 اگست سے کھل جائیں گے، لیکن عرس کے لیے صوبائی حکومت سے اجازت لینا ہوگی۔ محرم کے لیے علماء کے تعاون سے SOPs بنا لی گئی ہیں۔ 15 ستمبر کو ایک تاریخ دی جا رہی ہے جس دن تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے، لیکن ایک آخری ریویو جو ہے وہ 7 ستمبر کے دن کیا جائے گا۔ ایجوکیشن منسٹر فیڈرل جو ہیں وہ صوبائی تعلیم کے جو وزراء ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک آخری دفعہ کریں گے۔ آج یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو ریسٹورانٹس، کیفیز وغیرہ ہیں یہ آؤٹ ڈور بھی اور انڈور بھی، یعنی باہر بیٹھنے کا جہاں پہ انتظام ہے وہاں بھی اور اندر بھی جہاں پہ انتظام ہے وہاں پر 10 اگست تک، ان کو 10 تاریخ کو پیر کے دن ان کو کھولنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اگلے 2 سے 3 دن کے اندر ان کے SOP جو ہیں وہ فائنلائز کر دیے جائیں گے۔ یہ جو ہیں ٹورسٹ علاقے جو ہیں اور ان کے ہوٹلز وغیرہ جو ہیں ان کو پرسوں سے یعنی 8 اگست سے کھول دیا جائے گا۔ پھر ہمارا جو ریکریشنل سیکٹر ہے، سنیماز ہیں، تھیٹرز ہیں، پبلک پارکس ہیں، امیوزمنٹ پارکس ہیں، آرکیڈز ہیں، ان تمام جو جگہیں ہیں ان کو بھی پیر 10 اگست سے کھول دیا جائے گا۔ اور یہ جتنی بھی جگہیں میں بتا رہا ہوں ان سب کے بڑے تفصیلی ہدایات مرتب کی جا رہی ہیں، ان کے SOPs ڈیولپ کیے جائیں گے۔ کبڈی ہے، کشتی ہے، رگبی ہے، باکسنگ ہے، اس قسم کی سپورٹس کے علاوہ جو باقی سپورٹس جو ہیں ان کی اجازت دے دی جا رہی ہے۔ ایونٹس بھی آرگنائز کیے جا سکتے ہیں لیکن آڈینس کے بغیر۔ ایئر لائنز اور ریلوے جو ہے وہ فری ہوگی، کسی بھی ریل اسٹیشن پہ وہ اپنی گاڑیاں لے جا سکتے ہیں، اور جو ان کی نارمل جتنی بھی ٹرینز ہیں، ریل کارز ہیں، ریل گاڑیاں ہیں وہ ان کو چلا سکتے ہیں۔ میرج ہالز یہ ایک چیز ہے جس کے اوپر بہت بات کی گئی ہے۔
तो वो भी हम इस वक्त फैसला कर रहे हैं कि 15 सितंबर से मैरिज हॉल्स खोले जा सकते हैं, होटल्स भी जो हैं वो शादी के फंक्शंस कर सकते हैं। जो औकात कार थे मार्केट्स के खुलने के, दुकानों के खुलने के, और जो हफ्ते में छुट्टी वाला मामला था, वो जो कोविड आने से पहले यानी मार्च से पहले जो सूरत हाल थी वो उसी पुराने सिस्टम पर रिवर्ट किया जा रहा है। जो कोरोना की वजह से इनके औकात कार और दिन जिन पे वो काम कर सकते थे वो पाबंदी ख़त्म की जा रही है। दुनिया देख रही है पाकिस्तान को, दुनिया कह रही है कि जो पाकिस्तान के अंदर हुआ वो वाकई एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया सबक हासिल कर सकती है, और ये सब इसलिए मुमकिन हुआ कि इस कामयाबी के जो हीरो हैं वो पाकिस्तान के अवाम हैं, वो आप हैं। वतन अजीज में कोरोना परेशानी के बाद अच्छी खबरें आने लगीं। हुकूमत ने 5 माह से जारी लॉकडाउन के खात्मे का ऐलान कर दिया। तालीमी इदारे 15 सितंबर, जबकि तफरीही, सियाहती मकामात, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट 10 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। कोरोना लॉकडाउन में अवाम ने वक्त कैसे गुजारा, इस रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान में कोरोना का पहला मरीज 27 फरवरी को कराची में सामने आया। उस वक्त तक वफाकी और सूबाई हुकूमतों की इस बारे में कोई तैयारी नहीं थी। कराची में कोरोना मरीजों में तेजी से इजाफा होने की वजह से सिंध हुकूमत ने 23 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और तमाम कारोबार बंद करके शहरियों को घरों में महदूद रहने की हिदायत की गयी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कोरोना केसेस सामने आने पर वफाक और सूबों में लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन की बहस चल पड़ी। वजीर आजम ने लॉकडाउन को कर्फ्यू करार देकर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का आइडिया दे दिया। जरूरी कारोबार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई। इनमें करियाना, मेडिकल स्टोर, दूध दही की दुकानें शामिल थीं। कारोबार बंद होने से वबा के साथ साथ आवाम को बेरोजगारी का सामना भी करना पड़ा। फैक्ट्रीज कारोबार बंद होने से मुंसलिक अफराद नौकरियों से फारिग कर दिए गए। तालीमी इदारे बंद हुए तो तलबा के साथ साथ असातिज़ा भी घर बैठ गए। कुछ तालीमी इदारों ने ऑनलाइन तालीम का सिलसिला शुरू करके टीचर्स और स्टूडेंट्स को मसरूफ कर लिया, लेकिन वालिदैन और स्कूल मालिकान के दरमियान फीसिस पर बहस का सिलसिला शुरू हो गया। स्कूल मालिकान ने फीसिस का बहाना बनाकर असातिज़ा को तनख्वाहों की अदायगी से इनकार कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब अफराद को 12,000 रुपए माहाना देकर बेरोजगारी की तलाफी की कोशिश की। सरकारी मुलाजमीन को भी जरूरत के तहत दफातर में बुलाया गया। कारोबार बंद होने से हजाम, ब्यूटी पार्लर, जिम, रेस्टोरेंट, शादी हॉल, काम करने वाले अफराद मुकम्मल बेरोजगार हो गए। मई के महीने में वजीर आजम ने लॉकडाउन को मरहलावार खोलने का ऐलान किया। कंस्ट्रक्शन का शोबा खोलने का भी ऐलान हुआ। वजीर आजम का कहना था कंस्ट्रक्शन के शोबे के साथ साथ 40 कारोबार और भी चलेंगे, जिससे गरीब आदमी को रोजगार मिलेगा। कोरोना केसेस में बातदरीज बेहतरी आने से कोरोना हॉटस्पॉट करार दिए जाने वाले इलाके बंद किए जाने की तरकीब अपनाई गई। मुल्क में कोरोना का जोर टूटने के बाद हुकूमत ने 10 अगस्त से तमाम कारोबार, जबकि 15 सितंबर से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खोलने का ऐलान कर दिया। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है स्कूल खोलने का हतमी फैसला 7 सितंबर को कोरोना की सूरत हाल देख कर किया जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैनचेस्टर में खेले गए टेस्ट का दूसरा दिन शाहीनों के नाम रहा। कौमी टीम ने मेजबान इंग्लैंड को 326 रन का हदफ दिया। इंग्लैंड ने 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 92 रन स्कोर किए। शान मसूद बरतानिया में 24 साल बाद सेंचुरी करने वाले बैट्समैन बन गए। पाकिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर 139 रन से नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज किया। विकेट पर मौजूद बाबर आजम पहले रोज 69 रन बना चुके थे। ताहम हरीफ टीम ने मजीद रन बनाने का मौका न दिया और पहले ही ओवर में पवेलियन वापस भेज दिया। असद शफीक सिर्फ 7 रन के मेहमान ही साबित हुए। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान भी 9 रन बनाकर चलते बने। शान मसूद ने सेंचुरी मुकम्मल की और इंग्लैंड में 24 साल बाद सेंचुरी करने वाले पाकिस्तानी ओपनर बन गए। शादाब खान ने शान मसूद के साथ मिलकर उम्दा बल्लेबाजी करते हुए 100 से ज्यादा रन की शराकतदारी कायम की और कौमी टीम की पहली इनिंग्स के स्कोर को 281 पर पहुंचा दिया। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स शुरू की तो शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद अब्बास ने ऊपर तले 3 विकेटें हासिल करके मुश्किलात से 2-4 कर दिया। रोरी बर्न्स को 4 जबकि डोम सबली और बेन स्टोक्स को 12 रन पर ही आउट हो गए। कप्तान जो रूट और पॉप ने
78 रन की शराकत कायम की और टीम का मजमूआ 62 रन तक पहुंचाया। यासिर शाह ने जो रूट को रिजवान के हाथों आउट कर दिया और इंग्लैंड की चौथी विकेट हासिल की। इंग्लैंड ने खेल के इख्तिताम पर 4 विकेटों के नुकसान पर 92 रन बना लिए हैं। शाहीनों ने दौरे इंग्लैंड का पहला टेस्ट अपनी परफॉर्मेंस से यादगार बना दिया। पहले रोज बाबर आजम ने रिकॉर्ड बनाया तो दूसरे रोज शान मसूद ने 2 एजाजात अपने नाम किए। शान मसूद ओपनर की हैसियत से 24 साल बाद सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तानी बने। ये उनके करियर की मुसलसल तीसरी सेंचुरी है जो इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ बनाई गई है। Well, that made a beautiful sound off the middle of Babar Azam's bat. दौरे इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में शाहीनों की ऊंची उड़ान, इंग्लिश टाइगर्स मुंह तकते रह गए। पहले बाबर आजम फिर शान मसूद ने इंग्लिश बॉलर्स की दुर्गत बनाई। Ball's winning too. मैनचेस्टर टेस्ट के आगाज पर 2 विकेट गिरने से मायूस होने वाले शायकीन के चेहरे उस वक्त खिल उठे जब शान मसूद को बाबर आजम ने ज्वाइन किया और इंग्लिश बॉलर्स की दुर्गत बनाई। बाबर आजम ने 11 चौकों की मदद से 69 रन बनाकर निराला एजाज अपने नाम किया। 50 to Babar Azam and a good one. दूसरे रोज बाबर आजम तो ना चल सके लेकिन शान मसूद ने भरपूर अंदाज में अपना हिस्सा डाला और अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। Oh, here a yes, and you can hear the appreciation of the Pakistan team. That's a wonderful innings. शान मसूद पाकिस्तान के वो वाइस ओपनर हैं जिन्होंने 24 साल के तवील अरसा के बाद इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में सेंचुरी बनाई। इनसे कबल सईद अनवर ने 1996 में सेंचुरी बनाई थी। शान मसूद की ये मुसलसल तीसरी सेंचुरी है। उन्होंने पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई है। Brady gets in and Shan Masood goes through to 150. That's why he was scampering back. पाकिस्तान के खिलाफ जारी मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लिश टीम के एक वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में इंग्लिश खिलाड़ियों को पवेलियन में फुटबॉल खेलते देखा जा सकता है। इंग्लिश खिलाड़ी स्टेडियम में पहले फ्लो से फुटबॉल को हेड की मदद से मैदान तक लाए और अपनी मुनफरिद सलाहियत से शायकीन के दिल जीत लिए। No, just try again. Here we go. Over to you. Heads up. Diamond head. Go! Oh, what a goal! So if you ever wonder what the England cricket team does in rain breaks, that's what they do. Muck about with a football. Very good. Only took 45 minutes. सहवन शरीफ के करीब इंडस हाईवे पर 2 तेज रफ्तार गाड़ियों में तसादुम। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। सहवन शरीफ के करीब इंडस हाईवे पर 2 तेज रफ्तार गाड़ियों में तसादुम हुआ। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लाहौर में चीनी नायाब हो गई। जिन इलाकों में दस्तयाब है वहां मुंह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। मजीद सूरत हाल क्या है जानते हैं इजलाल हैदर से। इजलाल बताएगा चीनी की सरकारी निर्खनामे पर कीमत क्या और कितने वसूल किए जा रहे हैं। जी, शहर लाहौर में चीनी का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर चीनी दस्तयाब नहीं है और जहाँ पर अगर दस्तयाब भी है तो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक उसकी फ़रोख्त नहीं की जा रही। चीनी का रेट वैसे सरकारी तौर पर तो 70 रुपये किलो रखा गया है, लेकिन शहर लाहौर में किसी भी जगह 70 रुपये किलो पर फ़रोख्त नहीं की जा रही। बाज़ इलाकों में 80 रुपये और बाज़ इलाकों में 90 से 100 रुपये और कुछ इलाकों में तो 100 रुपये से भी ज़ायद 1 किलो पर वसूल किए जा रहे हैं। इस वक्त मुमताज़ रोड जो कि चौक यतीम खाना के करीब का इलाका है उसकी दुकान में मौजूद हूँ और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि आखिर वो किस रेट पर चीनी इस वक्त फरोख्त कर रहे हैं और 70 रुपये किलो में क्यों फरोख्त नहीं कर पा रहे। तो जी आप बताइएगा क्या कहेंगे। सर 90 रुपये किलो तो हमें मिल रही है, तो 90 रुपये लेके हम 70 रुपये कैसे सेल करें। अगर 65-66 रुपये किलो हमें मिले तो इंशाल्लाह हम 70 रुपये सेल करेंगे। 3-4 रुपये का मार्जिन हमारा बनता है। हम खुद परेशान है कि हमें मिल ही नहीं रही। और बाद इलाकों में तो समझ लें कई दुकानदार ऐसे हैं रख के नहीं सेल कर रहे, कहते हैं हमारे पास चीनी नहीं है, लेकिन हम सेल कर रहे हैं 90 रुपये किलो सेल कर रहे हैं। इतनी मर्जी ले कोई आगे, हालांकि 90 रुपये किलो हम खुद ला रहे हैं और 90 रुपये किलो सेल कर रहे हैं और हमें लॉस हो रहा है क्योंकि लिफाफा भी हमारे पल्ले से लगता है और दूसरे नंबर पे लाना उसकी जो किराया वगैरह वो भी हम पल्ले से डाल रहे हैं। लेकिन क्या है कि चले 90 रुपये किलो सेल करने से हमें ये फर्क पड़ता है कि कस्टमर कोई और सामान वगैरह खरीद लेता है।
और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी बिल्कुल, दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि उनको जो पीछे से ही चीनी का जो कीमत है वो 70 रुपए में नहीं मिल रही, इसलिए वो 70 रुपए किलो में फरोख्त भी नहीं कर सकते और ट्रांसपोर्टेशन और दीगर अखराजात की मद में भी उनको पैसे देना पड़ते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह के इंतजाम करे कि दुकानदारों को 70 रुपए से कम में अगर चीनी दस्तयाब होगी तब वो 70 रुपए किलो में फरोख्त कर सकते हैं। इसके अलावा शहर लाहौर में जो चीनी की कीमत है वो 90 रुपए और इससे जायद पर किलो के हिसाब से पैसे वसूल किए जा रहे हैं, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर सिर्फ 68 रुपए किलो में चीनी दस्तयाब है। लेकिन उसके अलावा किसी भी जगह पर चीनी या तो मिल नहीं रही और अगर मिल रही है तो 90-100 रुपए का रेट इस वक्त किलो का रखा गया। इजलाल हैदर लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा में चीनी माफिया फिर सरगर्म, ओपन मार्केट में फी किलोग्राम चीनी की कीमत 95 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। शहरी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने और अशाए खुर्दनोश की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के हुकूमती दावे बेसूद साबित हो रहे हैं। शहर में बुनियादी जरूरत की दीगर अशाए खुर्दनोश की तरह चीनी माफिया ने एक बार फिर हुकूमती अहकामात हवा में उड़ाते हुए चीनी की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया है। शहर के ओपन मार्केट में सरकारी नरखनामे के बजाय फी किलोग्राम चीनी 95 रुपए फरोख्त की जा रही है। यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन का उनका ताल्लुक है कि वो इसको एसओपीज को भी फॉलो नहीं कर पा रहे कोरोना की, और दूसरा महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आपकी बात बिल्कुल बजा है, बिल्कुल हकीकत है कि हमारे एक आवाम जो गरीब आवाम है उसके बस से महंगाई का जो भूत है वो दूर निकल गया। इंस्पेक्टर या इस रैंक का कोई बंदा होता है जो विजिट करता है डेली बेसिस पे मार्केट रेट को चेक करने के लिए, तो मैं समझता हूँ उनको ये चाहिए कि इस यहाँ पे ये बड़ी मार्केट है, यहाँ अपना एक आदमी डिप्यूट करना चाहिए जो डे टू डे विजिट करे और इन चीज़ों को चेक करे, और उससे ये फायदा होगा कि आवाम तक जो है वो एक मुनासिब कीमत या मुनासिब रेट पे हर चीज मुहैया होगी। कोयटा में शहर के मरकजी हिस्से समेत अक्सर नवाही इलाकों में दुकानदार सरकारी नरखनामे पर कोई अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब शहर के अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स में भी चीनी, आटा और दीगर बुनियादी जरूरत की अक्सर अशय खुर्दनोश दस्तयाब नहीं है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। मुल्क भर की तरह रहीम यार खान में भी महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी मुश्किल बना दी है। आटा, चीनी, सब्जियां, फल और गोश्त, हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फारूक। रहीम यार खान में रोजमर्रा इस्तेमाल की बेशतर चीजें नायाब हो चुकी हैं। आटा और चीनी दुकानों पर दस्तयाब ही नहीं, जबकि जखीरा अंदोजों की जानिब से की गई मसनूई महंगाई ने भी लोगों की परेशानी को दुगना कर दिया है। हर चीज जो है वो हमारी पहुंच से दूर हो गई है। अब तो जीना भी बहुत महाल हो गया है, महंगाई बहुत हो गई, गरीब बंदा नहीं ले सकता। रहीम यार खान की बेशतर दुकानों पर आटा और चीनी दस्तयाब ही नहीं। काफी तकदोद के बाद अगर किसी दुकान से ये दोनों अशिया मिल भी जाएं तो इनकी कीमत ही इतनी ज्यादा है कि आम आदमी इनकी कीमत सुनकर ही चकरा कर रह जाता है। मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि मसनूई महंगाई करके चीजें महंगी बेचने वाले इस माफिया के खिलाफ अब फैसला कुन कार्रवाई करे। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज, रहीम यार खान। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। गंदुम और आटे की कीमतों को पर लग गए, रोटी भी गरीब की पहुंच से बाहर हो गई है। परेशान हाल शहरियों का कहना है कि यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं, जब जो चाहता है अशिया की कीमतें बढ़ा देता है। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल हुआ मुश्किल। आटे के बहरान और इसकी कीमतों में इजाफे से नया तूफान सामने आ गया, जिससे मसाइल ज़दा, महंगाई ज़दा अवाम सख्त परेशानी से दो चार हैं। हुकूमत के नोटिस पर नोटिस भी बेकार साबित हुए। वतन अजीज जो पहले ही मुताद्दिद बहरानों का शिकार था, अब आटे के बहरान ने खैबर से लेकर बोलान तक पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। अवाम जो पहले ही बढ़ती महंगाई के बोझ तले पिस रहे थे, अब आटे के हुसूल के लिए सरगर्दा हैं। पाकिस्तान जो एक ज़राई और गंदुम पैदा करने वाला मुल्क है, इसे अब गंदुम दरामद करने वाला मुल्क बना दिया गया है। मुल्क में वाफर मिकदार में गंदुम मौजूद होने के बावजूद इसकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया, जिसके बाद आटे की कीमत भी बढ़ा दी गई, जिसका बराह रास्त असर आम आदमी पर पड़ा। आटा महंगा होने के बाद रोटी 12 रुपए, नान 15 और 18 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। गरीब अफराद का कहना है कि 2 वक्त के लिए रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया है, गुजारा कैसे होगा। गरीब के मुंह से रोटी का निवाला छीन लिया गया है। अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर इसका मदावा न किया और माफिया पर हाथ न डाला तो रोटी का इशू हुकूमत को एक नई गंभीर सूरत हाल से दो चार कर देगा।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जापानी वजीर दिफा से बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी, फौजी और सिक्योरिटी ताउन समेत कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और जापानी वजीर दिफा में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी के फौरी बाद बाहमी राबतों, एंटी पायरेसी समेत दिफाई ताउन के शोबे में तरबियत और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। जापानी वजीर दिफा ने कहा कि दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए पाक फौज की कोशिशें काबिल कदर हैं। उन्होंने कोरोना और टिड्डी दल के खतरात से कामयाबी से निपटने के अमल को भी सराहा। मुल्क भर में बच्चों और बड़ों के लिए पाकिस्तान का परचम समेत मुख्तलिफ रंगों की झंडियों के स्टॉल्स लग गए हैं, जहां बड़ी तादाद में लोग खरीदारी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे फरहान एजाज, मजीद वो बताएंगे। जी फरहान। आज बिल्कुल जिंदा दिल कौमें जो है वो अपना योम आज़ादी नहायत भरपूर और जोश जज्बे के साथ मनाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में जैसे जैसे जो है वो 14 अगस्त करीब आ रही है, शहरियों का जो जज्बा है वो आसमानों से बातें कर रहा है। लाहौर पूरे में तमाम सारे इलाकों में जो है वो स्टॉल सज गए हैं, शहरी जो है वो खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि जो है मून मार्केट के इलाके में तकरीबन जो है वो 5 से 10 के दरमियान जो है स्टॉल लगे हैं, जहाँ पे जो है वो हर साइज के झंडे भी मौजूद हैं। शहरी जो है वो खरीदारी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। शहरी इंतहाई पुरजोश है कि वो 14 अगस्त को मनाएंगे और आप वाघा बॉर्डर भी जाएंगे परेड देखने। इंशाल्लाह जरूर, हर बार जाते हैं, इस बार हमारे पूरे मार्केट के लड़के भी जाएंगे। मून मार्केट में हम काम। अच्छा, हम दुकानदार से भी बात करते हैं कि गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल जो है वो कितना जोश जज्बा और रश जो है वो दुकानों पे देखने को मिला। जी बताइएगा कैसा रश है, कैसे जो है वो शहरी जोश जज्बा आपको नजर आ रहा है? जी इस दफा माशाल्लाह बहुत ज्यादा जोशो खरोश नजर आ रहा है आवाम में, और भरपूर तरीके से हम भी मनाएंगे। हम अपना सामान बेचते हुए ये स्टॉल लगाया हुआ है, सामान बेचते हुए अपने 14 अगस्त मनाएंगे, और जो आवाम है वो अपने तरीके से मनाएंगी। वो खरीदारी कर रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से जिस तरह जिसके पास जैसे पैसे आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा आमदन तो नहीं है, लेकिन जितना भी लगाया हुआ है माशाल्लाह लोगों में जोशो खरोश बहुत पाया जा रहा है। इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान दुनिया का सबसे वाहिद मुल्क है जिसमें किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी अब नहीं है, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, किसी किस्म की कोई जो है हमें कुछ भी नहीं पाया जा रहा। बिल्कुल शहरी जो है वो इंतहाई पुरजोश है और खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि इस साल जो है वो अपने घरों में जो है पाकिस्तानी झंडों के साथ साथ जो है वो कश्मीर के झंडे भी लगाएंगे और पूरी दुनिया के सोए हुए हुक्मरानों को ये बावर करवाएंगे कि कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है। और शहरियों का ये भी कहना था कि इस साल जो है वो 14 अगस्त को इंतहाई पुरजोश तरीके से मनाएंगे और वाघा बॉर्डर पर जो है वो अपने फौजी जो है भाइयों को जाके जो है वो नजराना भी पेश करेंगे, उनको सलाम भी पेश करेंगे और परेड भी देखेंगे। जी लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। उधर मुल्तान में माह अगस्त के आगाज के साथ ही शहर भर में जश्न आज़ादी की मुनासबत से स्टॉल्स लग चुके हैं, जहां शहरी अपने वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए मुख्तलिफ अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अहमद काशिफ से। अहमद, कैसी गहमा गहमी है जश्न आज़ादी को लेकर? जी बिल्कुल, 14 अगस्त करीब आता चला जा रहा है और इसके साथ ही एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए मुख्तलिफ मकामात पर शहर के स्टॉल्स जो हैं वो सजा दिए गए हैं, जहाँ पर सब्ज़ी लाली, परचम और बहुत सी दीगर अशिया जो है वो फ़रोख्त हो रही हैं और उनकी सेल में खासा इजाफा जो है वो देखना मिल रहा है। अवाम हमारे साथ मौजूद हैं, हम भी ऐसे एक स्टॉल पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा आप थोड़ा सा इधर हैं, मुझे बताएं वतन से मोहब्बत का इजहार कैसे करेंगे और 14 अगस्त आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो अंकल यही कहेंगे कि पाकिस्तान हमें कायदे आज़म ने आज़ाद करवाया, तो हमें यही चाहिए कि हम और ज़्यादा करें और वतन से और ज़्यादा मोहब्बत करें। तो आपने स्टॉल से कोई चीज़ ली? हाँ जी बिल्कुल, अभी हम कैप से ले आए हैं और झंडियाँ लेने आए, फिर घर को सजाएंगे और झंडा लगाएंगे और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करेंगे। सही जी, वतन से मोहब्बत के इजहार के हर शख्स के अपने अपने तरीके हैं और उस हवाले से वो मसरूफ़ है। बच्चा भी एक नज़र आ रहा है जिसने पाकिस्तान का झंडे की तरह की कैप पहनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने कश्मीर का यानी कि बैज भी लगाया हुआ है, पाकिस्तान की टोपी भी पहनी हुई है और आज से 14 अगस्त नज़दीक भी आ रही है, इस वजह से हम सामान वगैरह खरीदने आए हैं, तो 14 अगस्त आने की खुशी में हमें बहुत खुशी हुई है। सही जी बिल्कुल, और इसके साथ ही जो स्टॉल्स मालिक हैं वो भी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। सर मुझे बताइएगा कितना काम बढ़ जाता है इन दिनों में? अच्छा काम हो जाता है जी। हाँ, लोग आते हैं, माशाल्लाह अच्छी खरीदारी होती है। क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? बैजेज हैं, ब्रेसलेट है, बच्चों की शर्टें हैं, सूट वगैरह हैं, झंडे हैं, कैप वगैरह हैं
اور یہاں پر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جو یہاں دستیاب ہیں سٹالز پر، اور شہری دھڑا دھڑ یہاں سے آ کر وطن سے محبت کے اظہار کے لیے یہ چیزیں خرید رہے ہیں. جی، وطن سے محبت کے اظہار کے لیے لوگ چیزیں خرید رہے ہیں. احمد کاشف ملتان سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی ملک بھر میں 14 اگست یوم آزادی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. 1905 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام سے 14 اگست 1947 اور آج تک کی جدوجہد کا ایک منظر آپ بھی ملاحظہ کیجیے. ظلم تھے دیکھے ایسے، ایک آگ لگی سینے میں، مل کر جب بنے تھے طاقت، جب مقصد تھا جینے میں، جب پاس نظریہ تھا اپنے پھر روک سکا نہ کوئی، یوں پاکستان بنا تھا. ٹک ٹاک کا جنون ایک اور جان لے گیا. ٹوبہ ٹیکسنگ میں ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے دوران اتفاقیہ گولی چلنے سے 22 سالہ لڑکی جاں بحق ہو گئی. ٹوبہ ٹیکسنگ کی تحصیل کمالیہ کے علاقے خورشید آباد میں 22 سالہ لڑکی ہاتھ میں پستول تھامے ویڈیو بنا رہی تھی کہ اسی دوران گولی چل گئی. پولیس کے مطابق ٹک ٹاک کے لیے بنائی جانے والی ویڈیو کے دوران گولی چلنے سے لڑکی جائے وقوع پر ہی دم توڑ گئی. ہاتھ میں اینٹ لیے خون کا پیاسا نامعلوم سیریل کلر گجرانوالہ میں خوف کی علامت بن گیا. چند ہی ہفتوں کے دوران اینٹوں اور آہنی راڈ کے وار کر کے خواتین سمیت 6 افراد کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے. ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان، ڈکیتی، مزاحمت اور اجرت کے عوض قتل کرنے والوں کے خوفناک داستانیں عوام کو خوف میں مبتلا رکھتی ہیں. ان سب کے ساتھ سیریل کلر بھی سامنے آتے رہتے ہیں جو معاشرے کے لیے بدنما داغ بن جاتے ہیں. ہتھوڑا گروپ، کلہاڑا گروپ، گردن توڑ گروپ سیریل کلر کے طور پر مشہور ہوئے اور اپنے انجام کو پہنچے. اب اینٹ اور آہنی راڈ سے قتل کرنے والے نامعلوم سیریل کلر کے خوف سے گجرانوالہ کے شہری خوف سے اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں. نامعلوم سیریل کلر اب تک اینٹوں اور آہنی راڈ سے 2 خواتین سمیت 6 افراد کو قتل جبکہ 5 کو شدید زخمی کر چکا ہے. قتل کی پے در پے وارداتوں کے باوجود پولیس ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی ہے. نامعلوم ملزم رات گئے شہریوں کے گھروں میں داخل ہوتا ہے اور ان کے سروں پر اینٹوں اور آہنی راڈ کے وار کر کے قتل کر دیتا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں. تاہم جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بھی خطرناک ملزم کی عدم گرفتاری نے پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیے ہیں. زمین پھٹی نہ آسمان گرا. گجرات میں سنگ دل شخص نے باپ کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا. جائے واردات سے ثبوت بھی غائب کر دیے. پولیس نے تفتیش کی تو مجرم فر بولنے لگا. جس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، زندگی کی ہر آفت سے مقابلہ کرنا سکھایا، سفاق شخص نے اسی کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا. گجرات کے علاقے جلال پور جٹا میں بیٹے نے باپ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. باپ نے بیٹے کو پسند کی شادی سے منع کیا تھا. مجرم نے نہایت چالاکی سے جائے واردات کو پانی سے صاف کر کے ثبوت مٹانے کی کوشش کی. پولیس حکام نے مجرم کی شاطرانہ چال کو پیشہ ورانہ مہارت سے ناکام بنا دیا. دوران تفتیش متضاد بیانات کے باعث پولیس نے شک کی بنیاد پر تفتیش کی جس پر مجرم نے اپنا جرم قبول کر لیا. پولیس نے مقتول کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے مجرم کو گرفتار کر لیا ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے. توانائی، صحت، تعلیم اور آبی وسائل کی تقسیم سمیت اہم پالیسیز منظور کر لی گئیں. مشترکہ مفادات کونسل کے اعلامیہ کے مطابق متبادل انرجی پالیسی کی منظوری دے دی گئی. اوگرا آرڈیننس 2002 میں ترمیم پر بھی بریفنگ دی گئی. اجلاس میں صوبوں کے درمیان پانی کے مسئلے پر فیصلوں کی روشنی میں تجاویز پیش کی گئی. 18ویں ترمیم کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن سے متعلق فیصلوں پر عمل درآمد کا بھی جائزہ لیا گیا. کونسل نے تعلیمی معاملات صوبوں کے سپرد کرنے کی منظوری دی. کمیونٹی سکولز کے مستقبل کا بھی جائزہ لیا گیا. NCERT اور BECS کے معاملات بھی صوبوں کے حوالے کرنے کی منظوری دی گئی. یہ مرحلہ اس مالی سال تک مکمل ہو جائے گا. کونسل نے کورونا سمیت عوامی فلاح اور صحت سے متعلق فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ بھی لیا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ کشمیر پر سودا ہو چکا ہے اور حکومت اس میں ملوث ہے. ہم نے تو ہر جمعے کو باہر نکل کر احتجاج کرنا تھا، وہ کہاں گیا؟ مقبوضہ کشمیر کے عوام پاکستان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں. یہ نہ صرف پاکستان کی اپوزیشن کا الزام ہے، یہ پاکستان کی عوام کا الزام ہے.
ये कश्मीरियों का इल्जाम है कि कश्मीर पे सौदा हो चुका है और ये हुकूमत उसमें मुलव्वस है। ये मेरा इल्जाम नहीं है। हम चाहते हैं कि हुकूमत अपना किरदार से, हुकूमत अपना काम से, हुकूमत अपना डिप्लोमेटिक जिदोजहद से, अपना कानून साजी से ये बात का जवाब दे। लेकिन 1 साल गुजर चुका है जब से नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर का कब्जा कर लिया है, आज तक पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आया है? कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में बुजुर्गों, बच्चों और खवातीन को शहीद किया जा रहा है। अवाम बदतरीन लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। आलमी ताकतें खामोश हैं और मौजूदा हुकूमत ने तस्वीर, तकरीर और टेलीफोन के सिवा कुछ नहीं किया। कश्मीरियों का क्या जुर्म है कि उनके साथ ये तय किया गया था सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशंस में, कि आपको हक के खुद इरादियत दिलवाया जाएगा। पाकिस्तान ने उसके लिए हमेशा आवाज उठाई और आज वो बेचारे अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। जनाब चेयरमैन, ये है वो एक दिलखराश कहानी, एक रुला देने वाला वाकया, हिस्ट्री, जिसके ऊपर हमें आज अपने अंदर अपने आप को देखना होगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी कि क्या वजह है। हम एक न्यूक्लियर ताकत है, कोई नहीं कहता कि हम खुदा न खास्ता हिंदुस्तान के ऊपर न्यूक्लियर ताकत के साथ चढ़ पड़े। नोबडी वांट्स दैट। दैट इज नॉट द पॉइंट एट इशू। पॉइंट एट इशू इज कि हमारी हुकूमत ने इन 2 सालों में कितने कश्मीर के हवाले से नाटक रचाए, मगर अमली मैदान में इन्होंने क्या किया। वफाकी वजीर बराए पोस्टल सर्विसेज मुराद सईद ने कहा है कि वजीर आजम ने मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उठाया। बताया जाए कि नवाज शरीफ ने हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात करने से क्यों इनकार किया। यौम इस्तेहसाल पर बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ कहां गायब थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो इशू आपकी वजह से इंडिया अपना अंदरूनी मसला समझता था, इमरान खान की वजह से इंटरनेशनलाइज बन गया। दुनिया के अंदर कश्मीर का मुकदमा इमरान खान लेके गए। आप कहते कि उससे कुछ नहीं होता। पूरे पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े थे और जो कियादत वहां से स्क्रीन से गायब थी पूरा दिन, टीवी ने इनके ऊपर रिपोर्टिंग भी की। उसमें एक जो अभी भड़के मार रहे थे ये थे और साथ में शहबाज शरीफ साहब थे। ये कह रहे कि हुर्रियत रहनुमा जो आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तारीफ कर रहे हैं, खत भी लिख रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड भी है, दुनिया के सामने भी बोल रहे हैं। इनको एतराज ये है कि हुर्रियत रहनुमाओं की मुलाकातों से कुछ नहीं होता। मैं पूछता हूं कि आपकी हुकूमत में भारत जाके भी हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकातों का इनकार क्यों किया आपने? अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।